ڈھونڈیں گے نا انٹرنیٹ پر تو لنگر میں آپ کو سردار ملیں گے ورلڈ وائڈ کہ جو ٹریڈیشن تھی اسے کلچر کا پارٹ سمجھ کے ہم نے روک دیا اور ہم نے اس کو مذہبی اس کا پارٹ نہیں سمجھا. بابا گرو نانک دیو جی ان کو اپنے والد صاحب نے 20 روپے دیے اور ان کو کہا کہ کوئی اچھا سا کاروبار سٹارٹ کریں. دنیا نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا, انہوں نے کہا اس سے نیک کام نہیں اور اس سے اچھا سودا بھی کوئی نہیں ہے. ہاں تو وہاں سے وہ لنگر کا سسٹم شروع ہوا. جہاں پہ انسانیت اور بھائی چارے کی بات ہے تو وہ ہر ریلیجن اپنے اپنے طور پہ اس کی مکمل تائید کرتا ہے. یہ جو بیسک مینرز یہ سارے نا یہ تو ہر مذہب میں سکھایا جاتا ہے. اس سے مسلمانوں کو بھی درس لینا چاہیے کہ باقی لوگ جیسے ان کی ہیلپ وغیرہ کریں. اسی طرح جب ان کے کوئی ایونٹس وغیرہ ہوں تو ہم بحیثیت مسلمان کے وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہماری کنٹری میں رہ رہے ہیں. ہر بندہ اگر انڈیویجول اپنے لیول پہ بہتری کرنا چاہے تو ملک میں بہتری ہو سکتی ہے. پاکستان خبر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں. دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ حسنہ طارق پاکستان خبر ٹی وی کے ساتھ. ناظرین, آج ہم ایک افطار میں موجود ہیں اور یہ وہ وقت ہے جب فرقہ واریت کو اتنا زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے. ہم لوگ فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن دوسری جانب دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ انسانیت کا درس دے رہے ہیں, وہ انسانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مذہب سب سے بڑا ہے تو وہ انسانیت کا ہے, محبت کا ہے اور بھائی چارے کا ہے. تو اسی طرح ہمارے ساتھ ایک سردار جی موجود ہیں آج, جو اس مذہب سے تعلق تو نہیں رکھتے لیکن لوگوں کے لیے افطاری کا اہتمام کرتے ہیں اور کافی عرصے سے جو ہے یہ اہتمام کر رہے ہیں. ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ایسا کب سے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, ان کی اس کے پیچھے تھاٹ کیا ہے. سیکنڈ, ہم لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں اس پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بتائیں, ہم بحیثیت مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے اتنا دل وسیع نہیں کرتے جتنا دوسرے مذاہب کے لوگ ہمارے لیے دسترخوان بھی اور دل بھی وسیع کرتے ہیں. کیوں, ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیں, ریلیجن کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے اور سوسائٹی کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے. ہمارا ریلیجن تو بالکل یہ نہیں سکھاتا. سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں, اسی لیے ہم لوگ ایک ساتھ کریں تاکہ ہم لوگ ان چیزوں کو توڑ سکیں اور آگے ایک چینج لا سکیں اور مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں ینگ پاپولیشن کا. ہمارا ریلیجن, ہماری نارمز, ویلیوز یہ چیز نہیں سکھاتی, بھائی چارے کا درس دیتی ہیں. تو پھر کبھی مسلمان اٹھ کے اس طرح سے جو ہے دوسرے مذاہب والوں کے لیے لنگر کا اہتمام کیوں نہیں کرتے, یا اس طرح سے عام کیوں نہیں کر پا رہے, لیک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے بینگ اے ینگسٹر؟ مجھے نہیں لگتا کہ جو ہماری ینگ پاپولیشن ہے اس کی اس طرح کے مائنڈ سیٹ ہے. پہلے لوگوں کے اس طرح کے مائنڈ سیٹ ہوتے تھے, بٹ اب کافی بدلاؤ آ رہا ہے. تو اب تو اس طرح کے مجھے نہیں لگتا اتنے میجورٹی کیسز ہمیں سننے کو ملتے ہیں. جو پرابلمس آتے ہیں وہ ہماری پرانی اولڈ جنریشن کی سوچ میں آتے ہیں, لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ ہم پاکستان میں بھی یہ چینج لے کر آئیں گے. السلام علیکم ایمان, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک, آپ سنائیں. الحمدللہ. کیا کرتی ہیں آپ؟ میں MBBS کر رہی ہوں, سیکنڈ ایئر میں, اور یہاں پہ والنٹیئر ورک کے لیے آئی ہوئی ہوں میں. کیوں؟ ہم لوگ ایک فاؤنڈیشن ہے SR فاؤنڈیشن, انہوں نے کولیبریٹ کیا ہوا ہے لائف ایٹ لاہور کی طرف سے. یہاں پہ 2-3 فاؤنڈیشنز اللہ والے ٹرسٹ سارا ہم لوگوں کو افطار پیکیجز وغیرہ پکڑا رہے ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ 3000 لوگوں کو یہاں پہ آج افطار کرائیں گے اور اسی کے لیے ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں. آپ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے, لوگ افطاریاں کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ میں ان کی بات کروں گی جن کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم بینگ اے مسلم اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کرتے, آپس میں بھائی چارہ نہیں ہے, لیکن دوسرے مذاہب والے جو ایسا کر رہے ہیں وہ کیا درس دینا چاہ رہے ہیں؟ جی, جو بھائی چارہ اور یہ سارا دوسرے ہیومن جو سکھ ہو گئے, کرسچنز ہو گئے, یہ جو بیسک مینرز ہو یہ سارے نا یہ تو ہر مذہب میں سکھایا جاتا ہے. ہر مذہب میں یہ ہے کہ پہلے آپ ایک اچھے انسان ہو اور بعد میں آپ کو مذہب کا درس دیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے اس سے مسلمانوں کو بھی درس لینا چاہیے کہ باقی لوگ جیسے ان کی ہیلپ وغیرہ کریں. اسی طرح جب ان کے کوئی ایونٹس وغیرہ ہوں تو ہم بحیثیت مسلمان کے وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہماری کنٹری میں رہ رہے ہیں, مائنورٹیز ہیں, ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. اسی لیے اس بیسس پہ یہاں پہ ایک سکھ جو ہیں ان کے لیڈر وغیرہ کو یہاں پہ دعوت بھی دی جا رہی ہے. یہاں پہ بھی صرف وہ مذہب کا وہ سیکٹ نہیں دکھایا جا رہا, یہاں پہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں پاکستان کی وہ بھی پاکستان کا حصہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یور گڈ نیم؟ ڈاکٹر ہمنا. ڈاکٹر ہمنا, کس چیز کی ڈاکٹر ہیں آپ؟ MBBS کی ہے. MBBS کی ہے. اسپیشلٹی کیا ہے؟ ابھی اسپیشلٹی نہیں ہے, ابھی ہاؤس جاب کر رہی ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اتنا فروغ دیتے ہیں انسانیت کو, بھائی چارے کو, ہم لوگ کیوں لیک کر جاتے ہیں؟ ہم لوگ اپنی شاید ایگو بیچ میں لے آتے ہیں بہت زیادہ, اس وجہ سے لیک کر جاتے ہیں. پھر ہمیں مسلمان ہونے کا ایک بہت زیادہ نا ایگو ہوتی ہے, پرائیڈ ہوتی ہے کہ ہاں ہم مسلمان, ہماری بخشش پکی ہے, ہماری بخشش پکی ہے, اللہ میاں ہمارے ہی ہے. ایگزیکٹلی, وہ اسی وجہ سے نا ہم لیک کر جاتے ہیں کہیں نہ کہیں.
पीछे उसी। रोज़ा है आपका? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, क्या करती हैं आप? मैं बी मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि बीइंग अ मुस्लिम हम इंसानियत को इतना प्रमोट क्यों नहीं करते? कहाँ पर लैग कर रहे हैं हम? क्या आज की जनरेशन भी जो है इसी को ही फॉलो करे या आज की जनरेशन ये चेंज ला रही है? हर बंदा अगर इंडिविजुअल अपने लेवल पे बेहतरी करना चाहे तो मुल्क में बेहतरी हो सकती है। अगर हम दूसरों को कहते रहें कि तुम कर लो तुम कर लो तुम कर लो तो फिर कोई भी नहीं कर सकता। आप अपनी ज़ात के इंडिविजुअल की बात करो, आप क्या बेहतरी ला रही हो या क्या सोच है आपकी कि आप कहाँ पे क्या बेहतरी ला सकती हो? अभी जिस लेवल पर हम लोग हैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट, हम लोगों को अच्छे इंसाफ के साथ तालीम हासिल करनी चाहिए। हमें लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। अपनी अना और ईगो साइड पे रखनी चाहिए कि मैं तो ये बन रहा हूँ या मैं तो ये बन रहा हूँ। सामने वाला भी आप जैसा ही होता है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? पहले से काफ़ी बेहतर। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगी, आप खुद भी माशाल्लाह से एक ट्रस्ट रन कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूँगी मुसलमान तंग दिल हैं या क्या ऐसी वजह है कि हम दूसरे मज़ाहिब की तरह के लिए उस तरह से दस्तरखान नहीं बिछा पाते जिस तरह से वो हमारे लिए कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है? देखिए, जब आप लंगर मारेंगे ना इंटरनेट पर, तो लंगर में आपको सरदार मिलेंगे वर्ल्ड वाइड, और जिन मुल्कों में आप समझते हैं कि खाने की कमी नहीं है वहाँ पर भी वो मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिशन थी उसे कल्चर का पार्ट समझ के हमने रोक दिया और हमने उसको मजहबी उसका पार्ट नहीं समझा। हालांकि हमारे तमाम मज़ारों पर लंगर चला करते थे और तमाम मेजर मकामात पर चला करते, इसी तरह सहरियाँ और अफ्तारियाँ भी चला करती थी, लेकिन ये डिसकंटिन्यू हो गया। उसकी वजह यह है कि शायद जो लोग मज़हब को ट्रांसलेट कर रहे हैं उन्होंने उसकी ट्रांसलेशन में कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड कर दी जिससे इस तरह की चीज़ें डिस्करेज हो गई और कुछ और जो है प्रैक्टिसेस वो ज़्यादा उभर के सामने आई हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर अब बेस कर रहा है फ्यूचर यंगस्टर्स पे। आपको क्या लग रहा है, यंगस्टर्स भी इसी तरह के रिजिड और ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग पैटर्न को लेके आगे चलेंगे या वो बदलेंगे? अब देखिए, कल्चर इज़ ए लर्न बिहेवियर, तो जैसे वो अपने बड़ों को करता देखेंगे वैसे वो करेंगे। शायद हम देख नहीं पा रहे, लेकिन यूथ जो है उस पर क्रेविंग है, वो सर्व करने की भी, और वैसे भी उनमें हेटरेट कम है, वो आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं। जी, तो इस वक्त हमारे साथ शाह ऑफ लाहौर मौजूद हैं, कश्फ इनका नाम है। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है इफ्तारी के बारे में और मन को बड़ा करने के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोग आए कवर करने के लिए। हमने पिछले साल से इंटरफेस इफ्तार शुरू किया। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद रोज़ेदारों की होती है और इनको इफ्तार कराने के लिए वाइट इन द फ्लैग जो माइनॉरिटी के हमारे दोस्त हैं वो यहाँ पे आते हैं और मील्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं पूछना चाहूँगी कि कभी गुरुद्वारों पे, मंदिरों पे या चर्च में जाकर मुसलमान कम्युनिटी से लोग क्यों नहीं लंगर खाने खोलते, उनके लिए जो है खाने पीने का अहतमाम क्यों नहीं करते? जिस तरह के आजकल देख रहे हैं कि हमारे जो सिख भाई हैं वो लंगर खाने का अहतमाम करते हैं मुसलमानों के लिए और इंसानियत का दर्ज देते हैं वो, और इसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी से काफ़ी लोग जो हैं इसमें अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मुसलमान इतना दिल क्यों नहीं खोलता? हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं? सो बेसिकली ना हम सिविक एजुकेशन में लैग कर रहे हैं। मैं अंदरून शहर से बिलोंग करता हूँ और मैं एक मिनॉरिटी स्कूल के अंदर पढ़ा जहाँ पे मेरे साथ जो मेरा दोस्त बैठता था वो मिनॉरिटी का दोस्त था। आप यकीन मानिए जो सबसे खूबसूरत जामे शीरी मैंने पिया अपनी ज़िंदगी में वो उसकी बोतल से पिया। सबसे खूबसूरत जो सैंडविच खाया है वो मैंने उसके लंच बॉक्स से खाया। हर साल हम जो 25 दिसंबर होती है उसके ऊपर हम गिरजों में भी जाते हैं, हम उनके साथ ईस्टर भी सेलिब्रेट करते हैं, हम उनके साथ जो उनसे उनकी खुशी में शमूल ज़रूर होते हैं। तो हर किसी ने अपना अपना रोल अदा करना है और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये आपको कामयाबी नज़र आएगी। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श के मिराज वाले, दो जहां की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने नात सुनाई। आप कोई पैगाम देना चाहें, आप कोई एक लाइन? जी मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि आज जो हमने वॉलंटियर का काम किया है तो एटलीस्ट हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे तमाम वो लोग थे, यहाँ पे कोई फ़िरका वाहिद नहीं था, हम सब एक दूसरे के बिल्कुल बराबर बैठे और अफ्तारी कर रहे थे। तो ये यकीन करिए एक बहुत बड़ा एहसास होता है जो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम किया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा है कि मैंने आज वॉलंटियर का काम किया। लेकिन जब मैंने उन सबको एक ही रो में बैठा है देखा है तो वो
मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो सर मैं पूछना चाहूँगी, आप माशाल्लाह काफ़ी सालों से लिबर्टी में ख़ुद भी लोगों को इफ्तार करवा रहे हैं, आपको ये सोच किस तरह से आई कि मैं आता हूँ और आके जो है लोगों के लिए लंगर खाने का जो है एहतमाम करता हूँ, लोगों को लंगर देता हूँ, इफ्तारी करवाता हूँ? बेसिक जो हमारे पहले गुरु थे बाबा गुरु नानक देव जी, उनको अपने वालिद साहब ने 20 रुपए दिए और उनको कहा कि कोई अच्छा सा कारोबार स्टार्ट करें। वो ननकाना साहबों की तलवंडी था उस टाइम उसका नाम, तो वो वहाँ से निकले तो सच्चा सौदा गुरुद्वारा वहाँ फ़र्रुखाबाद में बना है। फ़र्रुखाबाद शहर है, छोटा सा कस्बा था, तो वहाँ पे वो आए तो उन्होंने देखा दुनिया ने कई दिनों से खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा इससे नेक काम नहीं और इससे अच्छा सौदा भी कोई नहीं है। हाँ, तो वहाँ से वो लंगर का सिस्टम शुरू हुआ और वही गुरु नानक देव जी का लंगर है। सबके साथ ही लेन देन। हाँ, वही गुरु नानक देव जी का लंगर है जो आज तक चलता आ रहा है। हाँ जी। और आज जबकि इतने क्रूशियल हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क में, मुआशरती सियासी हर तरह से बहरान है, उसमें ये वाला जो कदम उठाया गया, आपको क्या लगता है आइंदा कुछ सालों में ये किस तरफ जाएगा? इसको बढ़ाना चाहिए। देखो, एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, कोई अच्छा खाना मिलता है उसको। एक गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता कि मैं कोई चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी खा लूँ या कोई अच्छा खाना खा लूँ। वो तो अपने दाल सब्ज़ी पानी वाले खाने खाते हैं, तो कोई अच्छा खाना खिलाओगे तो अल्लाह ने उसका सिला देना ही है। और हमें ये बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई माशी हालात ठीक नहीं होते, कोई महंगाई कम नहीं होती, तब तक कोई हमें करना चाहिए। आप लिबर्टी मार्केट में कब से तकसीम कर रहे हैं लोगों को? मैं कोई 12-13 साल से लिबर्टी मार्केट में हूँ और मेरा ये नहीं है कि मैं सिर्फ अफ्तारिया, डेली रूटीन में हमारा लंगर चलता रहता है। डेली रूटीन में लंगर चलता है डेली रूटीन में अफ्तारियों के बगैर भी कहीं ना कहीं हमारा लंगर चलता रहता है। जहाँ पे ज़रूरत होती है किसी को तो वहाँ पे हमारा लंगर चलता रहता है। जी, तो इस वक्त हमारे साथ प्रशांत सिंह जी मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है भाईचारे और इंसानियत के दर्स के बारे में। जहाँ पे इंसानियत और भाईचारे की बात है तो वो हर रिलीजन अपने अपने तौर पे उसकी मुकम्मल तायद करता है और अपने पैरोकारों को, मानने वालों को इस बात का हुक्म देता है कि मजहबी हम आहंगी, भाईचारा, इत्तेफाक और सारों को इकट्ठे इक्वलिटी के बेसिस पे सोशल जस्टिस के साथ लेके चलना तमाम मज़ाहिब के लोगों का फ़र्ज़ बनता है। जहाँ पे रमज़ान का महीना साल में 12 महीनों में एक महीना इस्लाम के दायरा कार में मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ किया गया है कि आप इस महीने में सयाम के महीने में उन 11 महीने भूखे रहने वालों का एहसास सोचते हुए एक महीना आप इस मुशक्क़त से गुजरेंगे, तो उस मुशक्क़त में खाने पीने के अलावा दूसरों का एहसास, आपसी इत्तेफाक, एकता, तमद्दुन, तहज़ीब और उन तमाम बातों का जिक्र आता है जो आज के इस दस्तरख्वां में यहाँ पे मौजूद अल्लाह वाले ट्रस्ट और लाइफ एट लाहौर के लोगों ने इस पंजाब की, लाहौर की तारीख को दोबारा रिवाइव करके ये साबित किया है कि इस पंजाब की सिविलाइजेशन में, कल्चर में तमाम लोगों का बराबर का हिस्सा था। इवन के यहाँ पे हम देखते हैं कि पंजाब में जो पहले और आखिरी सबसे ज़्यादा हुक्मरानी करने वाले पंजाबी हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह का दौर था, तो उनके दौरे हुक्मरानी में भी यहाँ पे उनके साथ हर तरह के, हर मज़हब के लोग उनके दौरे हुकूमत में शामिल थे। यही बात आज इस अफ्तारी में हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे हर मज़हब, नस्ल, फ़िरके और इलाके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जेंडर को भी बैलेंस किया हुआ है। इस बात की तायद करते हैं कि यहाँ पे हमने आपसी एकता, इत्तेफाक, मजहबी और तमद्दुन को, अपने इस कस्टम्स को जो है इकट्ठे लेके आपस में एक होकर रहना है और किसी किस्म के फ़र्क को, और आजकल की इस तारीख में जो हम देखते हैं कि इंतहा पसंदी, नफ़रतें, बिगाड़ और तोड़ फोड़ की बातें हैं, उसको हमने हरगिज़ नहीं मानना और उसको हमने पढ़े लिखे तरीके से आपस में मिलजुल के रहने से, अपनी ताकत से डिनाई करना है और हमने एक होकर रहना है। 2 दिन पहले हमारे जो पारसी भाई हैं उनका जश्न नौरोज़ था और कल होली का त्यौहार है और फिर इस महीने के एंड पर हमारे मसीही भाई जो हैं वो ईस्टर मनाएंगे और उसके 10 दिन के बाद अहले इस्लाम जो हैं वो ईद उल फितर मनाएंगे। तो गोया कि ये जो मौसम बहार है ये मोहब्बत का, प्यार का, अखुवत का, भाईचारे का पैगाम लेकर आया है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सब मिलकर, खा हमारा ताल्लुक़ किसी मज़हब से है, किसी मसलक से है, हम पाकिस्तानी हैं और इंशाअल्लाह हम इस पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
सर हमारे साथ थे, इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा पैगाम दिया कि हम पाकिस्तानी हैं और हम भाईचारे के साथ जो है आगे बढ़ेंगे। मज़हब चाहे कोई भी हो, फ़िरका चाहे कोई भी हो, रंग नस्ल चाहे कोई भी हो, सोचें ये कि हम एक मुल्क में रहते हैं, एक मिट्टी हमारी है, एक ज़मीन हमारी है, वहाँ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर, किसी नई स्टोरी के साथ।